how would you define success? You're being successful in life. For me, success is complete freedom. Complete freedom means कि no one's opinion is actually controlling your life. जब आप ये बोल रहे हो कि the person who is the most detached in the family, क्या मतलब है इस बात से? आपको अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा प्यार है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ का बटन किसी के भी हाथ में नहीं दे रहे। What do you think कि आज के सिनेरियो में आप सबसे ज्यादा लिमिटिंग बिलीव्स क्या देखते हो? कि आज के सिनेरियो में सक्सेस की डेफिनेशन ही यही है, गेट अ बिगर हाउस एंड अ बिगर कार। मेरे अंदर लेट्स से बहुत फियर है, व्हाट इफ आई विल नॉट सक्सीड इन दिस, देन माय लाइफ वुड बी लाइक कुछ नहीं रहेगा। हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट जो ब्रेन स्कैन से पता चले हैं वो थे बुद्धिस्ट मंक्स। बुद्धिस्ट मंक्स स्पेंड्स आवर्स एंड आवर्स ऑफ द टाइम रीडिंग स्क्रिप्चर्स एवरी डे। ब्रेकिंग अ हैबिट इज मोर डिफिकल्ट या बिल्डिंग अ न्यू? बैड हैबिट से आप नहीं छुटकारा पा सकते, क्योंकि वो बैड हैबिट्स बनी ही इसलिए है क्योंकि वो आपके किसी साइकोलॉजिकल लूप होल को एक्सप्लॉइट कर रही है। The person is saying that I am in a relationship. It is a committed relation, everything is going good, but I feel there is no romance. I feel there is no passion. When there are so many human dimensions to explore, why do people stick with only one? Hello and welcome everyone to POV Unpopular, where ideas, insights, and critical perspectives come alive, helping you lead a more impactful and intentional life. And on that note, for today's episode, we are deep diving into the psychology of transformation with the man who lives and breathes self mastery, Daksh Jindal. Daksh Jindal is a mindset and habit coach who has helped thousands of people transform their daily lives by helping them break their limiting beliefs, build powerful habits, impactful habits, and also bring about a profound change in their personal lives and then the lives of others around them. And that's the theme of the podcast for today as well. We'll cover how to build positive habits, how to come out of the rut race of negative habits, how to be in a more profound, fulfilling, and more aware self space, and how to live a more fulfilling and happy life. So I think it's going to be a very intellectual, very philosophical, a very I think powerful podcast for today. And I hope that when you watch this podcast, you don't watch it with any preconceived notions that you have, but with a very open mindset, so as to bring about a shift in your life as well. On that note, let's begin the podcast and let's welcome Daksh Jindal in the studio and in the show with us. So, hello and welcome, Daksh, to the show. First of all, how are you? I'm good. Thank you so much for inviting me to the show. Really Thank you looking so forward to much our for joining conversation. us today. It's a Yeah. pleasure to have you. And I'm so looking forward to our conversation today, a very intellectual conversation, hopefully, that we'll have today. And not the conventional intellectual, I feel. A थोड़ा little controversial out of the होगा. box. Okay. But I think, I think that's the conversation that people need right now. Okay, so we'll begin. And I think I'll begin with a question that is on my mind, because when I saw your Instagram profile, you are an avid reader. You've read so many books, so many books. And of course, if I say what's your favorite, you'll not have one, I'm sure. Multiple. But right now, if there's one book that comes to your mind which changed something inside you, which changed something for you, what book would that be? A very interesting book called Zorba the Greek. Okay, है ना? I've heard the book's name. I've not Yeah, read it. it's by Nikos Kazantzakis. ऑथर की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड Okay. बुक की कहानी अपने में है इंटरेस्टिंग, क्योंकि बुक ना एज के कॉन्सेप्ट को अपसाइड डाउन कर देती है। हमें लगता है कि हम जितना हमारी एज होती जा रही है, एनर्जी कम होती रहेगी, हम कम काम करेंगे, बट उसमें उस बुक के थ्रू द लीड कैरेक्टर जोरबा, ही इज़ सो एनर्जेटिक। वो उसके मैं सिंपल वर्ड्स बताता हूँ, वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल वर्ड्स। वो कहता है 20s में मैं भीड़ फॉलो करता था जो भीड़ कर रही है, 30s और 40s में मैंने थोड़ा थोड़ा अपना रास्ता फिगर आउट करना शुरू किया, फिर 40s में मैंने इतना काम किया, गलत भी और सही भी, जिसका मुझे कोई गिल्ट नहीं है। 50s में मेरे लिए वो काम कम पड़ने लगा, मैंने पूरी दुनिया घूम ली। अब 60s में मेरे लिए दुनिया भी छोटी पड़ रही है, अभी भी मैं इतना काम करना चाहता हूँ। तो इट वॉज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल कि कैसे लाइफ शुड एक्सपैंड विद एज रादर दैन कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि यू नो हम बच्चे को बड़े होते हुए देखते हैं, पर हम ये देखते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है उसकी एनर्जी लूज हो रही है बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी कंडीशनिंग। इंस्टेड उस बच्चे की एनर्जी एम्पलीफाई होनी चाहिए। बच्चा अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर रहा है जब वो अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं है। बच्चा अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं होता, पेरेंट्स सब कंट्रोल करते हैं और वो उसे एंजॉय करता है। पर जब वो अपनी लाइफ के कंट्रोल में आ जाता है
तब तो उसे लाइफ और ज़्यादा इंजॉय करनी चाहिए, पर उसके पास वो मेंटल कंडीशनिंग, वो मेंटल फ्रेमवर्क ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में वो एज का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एज के साथ एनर्जी कम होती रहती है, बट ऐसा नहीं होता। अगर सही मेंटल फ्रेमवर्क हो तो एज के साथ दुनिया छोटी पड़ जाती है। Wow, and I think it's not just energy come, perhaps that's one thing, but also in the society and culture that we live in. With age, let's say अगर हम अपनी सोसाइटी में बोले कि अभी तो मुझे घूमने जाना है, अभी तो मुझे गोवा जाना है, let's say just an example, या मॉरिशस जाना है, whatever, and then people will like कि अभी तुम्हारी उम्र हो गई है ये सब करने की, अभी थोड़ी ना ये उम्र है करने की. So I think that sort of taunting Exactly. also comes, like let's Exactly. say a 40-year-old person comes and says कि अभी तो मुझे पेंटिंग सीखना है, now I'm joining a painting class, and this like everyone around, पेंटिंग से क्या करोगे, बच्चों को सिखा लो, तुम क्या करोगे सीख. एग्जैक्टली। So यू नो एक एक्सपेरिमेंट मेरे दिमाग में आता है, साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। 75-year-olds लिए थे, 5 to 6 75-year-olds, दे वर पुट इन अ होटल। उस होटल की पूरी फर्निशिंग 20 साल पुरानी करी गई थी। उस होटल में सारा न्यूज़ मीडिया सब कुछ 20 साल पुराना चलाया गया था, और उन 75-year-olds को बोला भी गया था कि तुम अपने आप से ऐसे ही बातें करोगे जैसे तुम 55-year-old के हो। एंड उस टाइम पे जो होता था, एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट थिंग्स वर मेजर्ड, देयर ब्रेन बिकेम मोर यंग, है ना, देयर बॉडी बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर, जस्ट बिकॉज ऑफ द होल साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कि वो अपने आप को 20 साल पहले वाला महसूस कर रहे थे बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द टॉक्स। सो यू कैन सेंस हाउ मच द एनवायरनमेंट इज कंडीशनिंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ एज एंड टाइम एंड एवरीथिंग। So that is why Zorba was excellent book for me. wow, okay, ठीक है. Now since this podcast is about inner transformation, personal growth, everything, how would you define success, या being successful in life? I think for me success is complete freedom, and complete freedom means कि no one's opinion is actually controlling your life. So मेरा एक simple philosophy है, don't aim to become the most successful in your family, aim to become the most detached in your family. है ना, अगर आप अपनी फैमिली में सबसे डिटैच्ड हो गए, दैट इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सक्सेस यू कैन हैव। क्योंकि एक बार आप सोसाइटी से डिटैच हो गए तो फिर आपको सोसाइटी की टाइमलाइंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देन यू कैन फॉलो क्राफ्ट योर ओन यूनिक वे, है ना। देयर वाज अ वेरी गुड राइटर, उससे पूछा गया था कि कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते में हैं लाइफ में। तो वो कहता है कि अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो तुम सही रास्ते पे हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यू आर क्राफ्टिंग योर ओन जर्नी। आप अगर आपको रास्ता दिख रहा है कि 25 तक मुझे शादी करनी है, 30 तक बच्चे करने हैं, फिर बुढ़ापे के लिए पेंशन जोड़नी है, ये पूरा वेल ट्रॉडन रास्ता है, तो आप जी नहीं रहे। ओशो भी ये कहता है अपनी करेज बुक में कि मोस्ट पीपल आर ऑलरेडी डेड बाय द एज ऑफ 25, बस 75 की एज में उन्हें दफनाया जाता है। So if you are completely free from the opinions of the society, from the opinions of your family, if you are the most detached person in your family, you are the most successful person in your family. Okay, अभी क्योंकि हमने detached word use कर ही लिया and we have brought detachment into the conversation, so let's talk a little bit about detachment. क्योंकि जब आप ये बोल रहे हो कि the person who is the most detached in the family, क्या मतलब है इस बात से? अगेन डिटैच्ड का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे इमोशनलेस पर्सन हो, सबसे क्रूअल पर्सन हो फैमिली में। डिटैच का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ से सबसे ज़्यादा प्यार है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ का बटन किसी के भी हाथ में नहीं दे रहे। तो इन द एंड आपको अपनी लाइफ से इतना प्यार है कि आप सारा टाइम फ्लो स्टेट में रहते हो, फ्लो स्टेट ऑफ रीडिंग, फ्लो स्टेट ऑफ डूइंग द वर्क दैट यू आर डूइंग, फ्लो स्टेट ऑफ फिजिकल वर्कआउट। आप उन फ्लो स्टेट से ज़्यादा प्यार करते हो कंपेयर टू द ओपिनियंस ऑफ योर फैमिली, बिकॉज इन द एंड आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा आपकी फैमिली की ओपिनियंस कंडीशनड है बाय सुपरस्टिशन, बाय न्यूज़ चैनल्स दैट दे वॉच, और वो उस कंडीशनिंग के थ्रू आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बट लाइफ की बस एक ही रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी ये है कि हम लंबा जीना चाहते हैं। ओके, देयर इज़ नो पर्पस टू लाइफ इन द एंड, ऐसा कोई किसी की डेस्टिनी नहीं है, हम सिर्फ लंबा जीना चाहते हैं। एक पिग लंबा जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। एक शीप लंबा जीना चाहती है, वो मरना नहीं चाहती। सिमिलरली एक ह्यूमन लंबा जीना चाहता है। लंबा जीने के लिए ह्यूमन के पास ह्यूमन को फ्लो स्टेट में रहना बहुत पसंद है। फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे टाइम निकलता रहता है और आप काम करते रहते हो, अचानक से टाइम निकल गया पता नहीं चलता। दो तरह की फ्लो स्टेट होती है, पॉजिटिव फ्लो स्टेट, नेगेटिव फ्लो स्टेट। पॉजिटिव फ्लो स्टेट होती है जहाँ पे आप जब उस फ्लो स्टेट में गए, तो जब उस फ्लो स्टेट से बाहर निकलोगे टाइम निकल गया है और आप
कॉन्फिडेंट होके बाहर निकल रहे हो, हैप्पी होके। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने गए, 2 घंटे एक्सरसाइज करी, 2 घंटे पास हो गए, पर बाहर आके आप इतना अच्छा फील कर रहे हो। रीडिंग करी, 3 घंटे रीडिंग हो गई, बाहर आके आप इतना अच्छा फील कर रहे हो। दीज पॉजिटिव फ्लो स्टेट्स आर गुड फॉर यू। नेगेटिव फ्लो स्टेट होता है ओवर थिंकिंग के लिए बैठे, टाइम निकल गया पता भी नहीं चला, बाहर आके गिल्टी और फील हो रहा है, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, सिमिलरली कोई लड़ाई हो गई थी, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स लेकर बैठ गए, कई घंटे उस पर वेस्ट कर दिए, उस फ्लो स्टेट में गए, बाहर आए, एनजाइटी से भरे हुए हो, तुम्हारी हेल्थ खराब है। एंड स्ट्रेस इसी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि हम नेगेटिव फ्लो स्टेट में बहुत रहते हैं, हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे, ज़्यादातर बीमारियाँ साइकोलॉजिकल होती है बिकॉज हम इतने स्ट्रेसफुल होते हैं। तो इन दी एंड अगर नेगेटिव फ्लो स्टेट में ज़्यादा रहोगे, यू विल डाई सूनर। पॉजिटिव फ्लो स्टेट में ज़्यादा रहोगे तो लंबा जियोगे। एंड अगर लंबा जीना ही लाइफ का पर्पस है तो पॉजिटिव फ्लो स्टेट लाइफ का पर्पस है। एंड पॉजिटिव फ्लो स्टेट में रहना ही डिटैचमेंट है, उससे किसी के लिए नफरत करना नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप को पॉजिटिव फ्लो स्टेट में बिजी रखना, दैट इज डिटैचमेंट। बट इन दैट सेंस एक इंसान जो परहैप्स डिटैच्ड होके रह रहा है और फ्लो स्टेट में रह रहा है, कैन दैट पर्सन कम अक्रॉस एज सेल्फिश? This is a very interesting paradox कि someone who goes into a flow state might look selfish to the outside world, but if you look at it logically, एक इंसान अगर फॉर एग्जांपल उसे मैथमेटिक्स पसंद आ गया, वो दिन रात 8-8 घंटे सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहा है, वो इतना टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहा इधर उधर की बातों में। अब वो मैथमेटिक्स में इतना अच्छा हो जाएगा कि उसकी मैथमेटिक्स की वजह से कोई ना कोई ऐसी इन्वेंशन होगी जो लाखों करोड़ों की लाइफ चेंज करेगी। ठीक है, सो हिज सेल्फिशनेस इज मेकिंग हिम मोर वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी। वहीं पे एक इंसान जो सोच रहा है कि नहीं मेरे को सेल्फलेस रहना है, अब इसका फोन आ गया इससे बात कर लूँ, उसने बुला लिया वहां चला जाऊं वरना मैं बड़ा सेल्फिश हो जाऊंगा, उसकी लाइफ का एंड वैल्यू क्या होगी? उसने बस गॉसिप्स में, इधर उधर की बातों में, बुराइयों में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करी, एक मीडियोकर एम्प्लॉई, एक मीडियोकर इंसान बन के रह गया पूरी लाइफ। तो इन दी एंड वो सेल्फिशनेस एक्चुअली में आपको वैल्यूएबल बना रही है, जिससे आपके काम की वजह से लाखों करोड़ों का फायदा ही होगा। एंड परहैप्स अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को ही ऊपर नहीं रख पा रहे हो, तो शायद आप किसी और को कभी रख भी नहीं पाओगे। एग्जैक्टली, एंड यही एक रीज़न है जो आप देखो कि बच्चे टॉक्सिक हाउस होल्ड से क्यों निकलते हैं। क्योंकि पहले पेरेंट्स ने अपने आप को प्यार करना नहीं सीखा, पर सोसाइटी के प्रेशर में आके शादी बड़ी जल्दी कर ली। शादी कर ली, अब एक दूसरे के साथ वो माइंडसेट मैच नहीं करता और एक दूसरे को एक्सपेक्टेशन से भर देते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है एक डिटैच्ड इंसान की, उसे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि उसे पता है मेरी खुशी तो फ्लो स्टेट से आ रही है, मेरी खुशी तो इस बुक से आ रही है, इस एक्सरसाइज से आ रही है, जो मैं रोज साइंस का काम कर रहा हूँ, मैथ्स का काम कर रहा हूँ, वहां से आ रही है। तो उसे किसी और से एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। बाकियों की कंपनी उसके लिए बोनस होता है कि वो उनको सिखाता है, उनसे अच्छी बातें करता है, आइडियाज की, नॉलेज की, है ना। बट जो नॉर्मल सोसाइटी है वहां पे जल्दी शादी करा देंगे, फिर एक दूसरे को एक्सपेक्टेशन से भर देंगे, तू मेरे लिए बर्थडे पे ये नहीं लाया, तूने वैलेंटाइन पे ये नहीं किया, ये कर करके वो लड़ाइयों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। और उन्हीं लड़ाइयों के बीच में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे आ जाते हैं फिर तुरंत मैरिड लाइफ में। पेरेंट्स तो एक्सीलेंट हुए नहीं, बच्चे भी इन लड़ाइयों में बड़े हो रहे हैं, और वो मीडियोक्रिटी का लूप जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू होता रहता है, जहाँ पे बच्चे भी यही सीखते हैं कि तुम्हारी खुशी बाहर से आएगी, बाहर के लोग जब तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तभी तुम वैल्यूएबल हो, तभी तुम खुश हो। यू नो, सरप्राइजिंगली मैं यूके में कुछ ऐसे लोगों से मिला था, जैसे देयर वाज दिस गर्ल आई मेट इन यूके जिसने एक बारी में सीए निकाल दिया था, एंड एक बारी में उसके भाई ने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया था इन वन अटेम्प्ट। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, मैं जानना चाहता था ऐसा क्या अलग था उनके फैमिली में। तो वो कहती, पहली बात तो हमारे घर में टीवी नहीं था, दूसरी बात हमारे घर में मैंने कभी लड़ाई नाम की चीज ही नहीं देखी। कहती अगर मेरे मम्मी पापा के किसी रिलेटिव से कुछ चल भी रहा होगा, हमारे तक वो बात कभी पहुंची ही नहीं। तो दे वर सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस टॉक्सिसिटी, तो इसकी वजह से उनके माइंड में फ्रीडम थी टू वर्क ऑन द थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर्ड। एंड इसकी वजह से एक टाइम में सीए निकाल लिया, एक टाइम में नीट निकाल लिया। यहाँ पे लोग सालों साल लगे रहते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट उनको कभी फुल फोकस करने ही नहीं देता। Right. Okay. So I think since we are talking about the law of detachment and off camera also we were discussing how जो हमारे scriptures हैं, जितने भी हमारे सारे scriptures हैं, they also at the core talk about detachment, right? Be it Gita, be it Ramayana, Mahabharata, whatever scripture. But then how come, because we call ourselves a society जो बहुत धार्मिक है, जो अध्यात्म को बहुत महत्व देती है, then how come this society इनको वो कोर ही नहीं समझ आ रहा है इन स्क्रिप्चर्स का? ओके, तो ये चीज़ इस सोसाइटी की भी गलती है और हमारे पास हिस्ट्री की भी गलती है। जब हमारा कास्ट सिस्टम काम पे बेस्ड था कि
सबको, सारे बच्चों को गुरुकुल में डाला गया। जिसने बुक्स में इंटरेस्ट दिखाया वो ब्राह्मण बने, जिसने ट्रेडिंग में इंटरेस्ट दिखाया वो वैश्य बने। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आपको वो कास्ट मिलता था। बट धीरे धीरे वो कास्ट सिस्टम करप्ट होने लगा, जहाँ पर एक ब्राह्मण वो जाता था कि मेरा बच्चा ही ब्राह्मण बने, है ना, चाहे वो किताबें उठाए ना उठाए। सिमिलरली एक क्षत्रिय चाहता था मेरा बच्चा ही क्षत्रिय बने। तो धीरे धीरे वो जब गुरुकुल सिस्टम करप्ट हो गया तो सबसे पहली चीज क्या बोली गई नीचे के कास्ट वाले लोगों को, अरे तुम्हें ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, राम का कृष्ण का नाम लो, उसी से पार लग जाओगे, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तो वहीं पर ही उनसे वो ग्रंथ छीन लिए गए देखा जाए तो, है ना। और उसके बाद दूसरा रीजन था जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअली आई। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूरोप में आई। यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आते ही वन ऑफ द मोस्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप वाज बाइबल। ठीक है, तो वहां पे ऑलमोस्ट 80 to 85% लोगों ने बाइबल पढ़ी थी, रीडिंग की हैबिट बना ली थी। हाँ, जब तक हमारे यहाँ पे एजुकेशन आई तो उनके यहाँ पे जब टीवी आया तो उनकी 80-85% पॉपुलेशन एजुकेटेड थी। हमारे यहाँ पे जब टेलीविजन आया हार्डली 5% लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा था, और टीवी ने आकर सबको डिस्ट्रैक्शन की एक रेस में डाल दिया। उस डिस्ट्रैक्शन की रेस में ये सारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे ये टीवी पे हीरो किरदार बन के रह गए। राम जी किरदार बन के रह गए, कृष्ण जी एक वो भगवान बन के रह गए टीवी पे, क्योंकि लोगों ने कभी खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करी। टीवी पे इन्हें देखा तो टीवी पे देखा है तो हीरो हैं, ये तो हमसे अलग हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ हम यही करते हैं जब उन्हें हम सारे लोगों को, मेरे को तो कृष्ण जी फिलोसोफर लगते हैं, जब हम उनको भगवान बना लेते हैं, उनको भगवान टैग देने का मतलब यही होता है कि हम खुद आलसी हैं कि हम उनके जैसा नहीं बनना चाहते। भाई कौन फॉलो करेगा वो डिटैचमेंट, वो तो भगवान है इसलिए कर लिया उन्होंने, है ना। बट इन दी एंड भाई वो फिलोसोफर थे और वो अपनी फिलोसफी सिखा कर गए हैं, वो फॉलो करो। पर नहीं, हमें उनको भगवान बना के उनकी आरती उतारने में ज्यादा मजा आता है, तो क्योंकि वो आसान है ना। दूसरी चीज में मेहनत लगेगी। तो पहली चीज हमारा जो कास्ट सिस्टम पल्यूट हो गया, वहां उसने स्क्रिप्चर्स छीन लिए। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शंस आ गई जिसकी वजह से हीरो वर्शिपिंग शुरू हो गई। आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस और एक्टर्स भगवान है, उन पे दूध चढ़ते हैं, उनकी पूजाएं होती है ना। तो उस चीज से हम बाहर ही नहीं निकल पाया एज अ सोसाइटी। एंड इवन इन टुडेज टाइम्स आई थिंक जितना भी अध्यात्म है वो शायद हम सोशल मीडिया से ही सीख लेते हैं, हाँ या फिर हम टीवी से सीख लेते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं पता है क्या है। हाँ, हम खुद से स्क्रिप्चर्स उठा के पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना हाई है। वरना अगर आप खुद से भगवत गीता उठाओगे, भगवत गीता जैसे ही सबका नाम आता है भगवत गीता का, सब यही आता है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। पर उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिटैचमेंट का, वो ना सही से समझते हैं, ना वो सही से कहीं पढ़ाया जाता है। सबसे पहली चीज़ कृष्ण जी अर्जुन को यही समझा रहे होते हैं कि ये जो सारे रिलेटिव्स है तेरे सामने जो खड़े हैं, तेरे कजन्स भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, जिनके लिए तू इतना अटैच हो रहा है, ये तेरे को तेरे काम करने से रोक रहे हैं। वो अटैचमेंट को काट और अपने आप को सिर्फ एज अ सोल देख जिसको काम करने के लिए भेजा गया है। सबसे पहली चीज ये सिखाते हैं। उसके बाद कर्म योग आता है कि अब काम कर बिना किसी इच्छा के, है ना। पर हमारा फोकस भगवत गीता पे सिर्फ एक ही साइड पे जाता है क्योंकि फर्स्ट साइड थोड़ी डिफिकल्ट है कि भाई हम अपनी फैमिली से कैसे डिटैच हो सकते इट्स हैं। लाइक या हाँ। बिकॉज वो पेरेंट्स भी नहीं सिखा सकते, उन्हें खुद भी हाँ डिटैच होना पड़ेगा हाँ, पहले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वहां से थोड़ा सिस्टम हमारा खराब होना शुरू हो गया कि गुरुकुल में भी ये ले लो, डिटैचमेंट बड़ा नॉर्मल था। जैसे ही बच्चा 10 साल का हुआ सीधा गुरुकुल में गया, फिर वो बड़े होकर ही घर आता था। तो वो कभी पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता ही नहीं था इतना कि उनका बुरा माइंडसेट और हैबिट्स पास डाउन हो। तो वो वहाँ से नया माइंडसेट नई हैबिट्स बिल्ड करके आता था। वो सिस्टम भी चला गया। फिर एक ये सोसाइटी कम्युनिटी बन गई जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा बन सके। खुद को इतना हेल्दी फिजिकली मेंटली नहीं रख रहे कि बुढ़ापे में सहारे की जरूरत ही ना पड़े। जैसे वेस्ट में होता है, वेस्ट में 75 ईयर ओल्ड्स आर गोइंग फॉर मैराथन्स। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। Wow. And I mean, if you put out, if you put out this argument in front of that generation, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने में मिल जाएंगी कि आप वेस्ट से कैसे कंपेयर कर रहे हो। वहाँ पे तो डिप्रेशन बहुत हाई है, वहाँ पे तो एंजाइटी स्ट्रेस बहुत हाई है, वहाँ पे तो डिवोर्सेस बहुत हाई हैं। हाउ आर यू इवन, हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ तो नहीं होते डिवोर्सेस, हमारे यहाँ तो नहीं होता डिप्रेशन। तो ये एक साइकोलॉजिकल बबल है जो न्यूज़ ने आपको फोर्स करने पे सोचा हुआ है। वरना आप देखो हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड उठा लो, सारी ज़्यादातर वेस्टर्न ही है। एक ही हैप्पीएस्ट कंट्री है वो ईस्ट में, वो है भूटान। भूटान जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी फॉलो करती है, जो फिलॉसफी पूरा डिटैचमेंट बेस्ड है, वो हमारी ही फिलॉसफी से निकली है। उसने वो सारे सुपरस्टिशन को हटा दिया और डिटैचमेंट के प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग बनाकर उस चीज़ को यूज़ किया। भूटान इज़ द हैप्पीएस्ट जो वेस्ट से कम्पीट करती है। वरना साउथ एशिया की कोई कंट्री हैप्पीनेस लेवल में वेस्ट से कंपेयर नहीं करती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वेस्ट से कंपेयर नहीं करती, क्लिनलीनेस में वेस्ट से कंपेयर नहीं करती। आप खुद ही सोचो, जब आप एक साफ रूम में होते हो तो आप कितना मेंटली रिलैक्स्ड फील करते हो। वहीं पे रूम में हर जगह कपड़े फैले हुए हो, सब गंदा हो रखा हो, तो
वहीं पे स्ट्रेस आ जाता है। तो आप कैसे बोल सकते हो वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिव कंट्रीज, जो इतनी साफ है, हर 10 मिनट में इतने सुंदर पार्क्स मिल जाएंगे वॉक करने के लिए, एस्थेटिकली इतनी सुंदर है, हर कोई, सारे बॉलीवुड सेलेब्स गर्मियों में वहीं जाते हैं, लंदन से सेल्फीज डाल रहे होते हैं, है ना। आज भी आप बॉलीवुड की शूटिंग देखोगे ना, जितना भी जो दिल्ली मुंबई में होती है, वो ज्यादातर वहां पर होती है जहाँ पे वेस्टर्न आर्किटेक्चर है ना। दिल्ली में भी ज्यादातर शूटिंग राष्ट्रपति भवन के आसपास, लुटियन हाउसेस के आसपास होगी, मुंबई में भी साउथ बॉम्बे के आसपास, जहाँ पे वेस्टर्न आर्किटेक्चर है, क्योंकि वेस्टर्न आर्किटेक्चर आज भी एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो ऐसा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बबल है जो न्यूज बनाती है ताकि नेपाल जैसी चीज इंडिया में ना हो जाए, एंड ताकि यूथ एक्चुअली में ये सारी चीजें मांगना शुरू ना कर दे, उनको ये दिखाया जाए कि नहीं भाई, बाहर देखो सब खराब है, तुम ठीक हो। Okay, and how beautifully we are all like we all fall into that trap. Exactly. Okay. So now, moving on from this detachment, I think हमने एक सक्सेस का क्वेश्चन लिया था सबसे पहले। तो जहाँ पे सक्सेस की बात आती है वहाँ पे लिमिटिंग बिलीव्स भी आते हैं जो हमारे खुद के हैं, और वो बहुत सारे हो सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि आज के सिनेरियो में आप सबसे ज्यादा लिमिटिंग बिलीव्स क्या देखते हो आज की जनरेशन में? आई थिंक आज के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ इसलिए आता है क्योंकि आज के सिनेरियो में सक्सेस की डेफिनेशन ही यही है, गेट अ बिगर हाउस एंड अ बिगर कार। आई एग्री, एवरीवन शुड बी फाइनेंशियली अबंडेंट, ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस के बिना यू विल नेवर लिव अ गुड लाइफ, बट चेजिंग फाइनेंशियल अबंडेंस एक्चुअली क्रिएट्स लिमिटिंग बिलीव्स इन योर माइंड। अब चेजिंग फाइनेंशियल अबंडेंस के पीछे क्या होता है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, उसको इंजीनियरिंग में ध्यान देना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स है, थोड़ी डिफिकल्ट है, उसमें ध्यान नहीं देगा, अचानक से यूट्यूब पे आ जाएगा कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके करोड़पति बने, और वहां पर उसका फोकस जाना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर वो इंजीनियरिंग में ध्यान दे के एक्सीलेंट इंजीनियर बने तो वो उस स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगा जहाँ पे 85% इंडियंस आर अनएम्प्लॉयबल, वो उस 15% में आएगा जहाँ पे एक्चुअली उसके पास स्किल होगा, और एक्चुअली में उसको इंडिया में रहते हुए भी ऐसी सैलरी मिलेगी, हिल बी सरप्राइज। लाइक मेरा कजन है, उसने इतनी कोडिंग करी इंडिया में रह के, आज एक अमेरिकन कंपनी ने उसे हायर किया हुआ है, ही इज अर्निंग इन क्रोर्स, एंड वो अमेरिका में नहीं रहता, इंडिया में ही रहता है विद दैट सेम सैलरी। कभी भी उसने फाइनेंशियल अबंडेंस चेज ही नहीं किया, वो बस लगा रहा कोडिंग में दिन रात, और उसमें इतना अच्छा हो गया। तो लिमिटिंग बिलीफ्स ही यहीं से आती है जब हम फाइनेंशियल अबंडेंस चेज करना शुरू कर देते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस चेज करते हैं, हम शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं बहुत सारे, वो शॉर्टकट्स काम नहीं करते तो हमारे अंदर वो टैग आना शुरू हो जाता है, हम तो फेलियर है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी किस्मत में ही ये नहीं है, ये सारी चीज़ें इस वजह से आना शुरू हो जाती है क्योंकि हम गलत चीज़ चेज कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटीज ओपिनियंस, फ्रीडम फ्रॉम द फैमिली, वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये सारी लिमिटिंग बिलीफ्स फैमिली से ही पास डाउन होती है। Okay, but ठीक है, so if we talk about this, let's say for anyone listening to us, they want to come out of this cycle, they want to break this cycle, तो what are some of those steps जो वो ले सकते हैं? बिकॉज ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, कहने में अच्छा लग रहा है, बट आप प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज, एक तो फाइंडिंग योर पैशन वाले भूत को हटाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। ओके, फाइंडिंग योर पैशन वाली रेस मैं बताता हूँ, उसके लिए 3 चीजें जरूरी है पैशन फिगर आउट करने के लिए। आई एग्री, इंसान हैप्पीएस्ट होता है जब वो कोई ऐसी चीज कर रहा होता है जिसके लिए वो पैशनेट है, पर उस पैशन तक पहुंचने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, फाइनेंशियली अबंडेंट होने चाहिए आप, दूसरा डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, और तीसरा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें ही नहीं है तो आप कभी पैशन वाली स्टेज पे आ ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आप जो भी देखोगे, जितने भी बड़े राइटर्स रहे, रविंद्रनाथ टैगोर उठा लो, महात्मा गांधी उठा लो, जवाहरलाल नेहरू उठा लो, ये सब रिच फैमिलीज से थे, तो अपना फ्रीडम मूवमेंट में वो पैशनेटली फॉलो कर पाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रीडिंग भी बहुत करी थी जिसकी वजह से इनके अंदर एक्सपर्टीज भी थी, है ना, एंड उसके बाद डिसिप्लिन भी था क्योंकि वो उन प्रोफेशंस में बहुत अच्छे रह चुके थे जिन प्रोफेशंस में उन्होंने कमिट किया था। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले फोकस करना चाहिए डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज में, क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस एज आई सेड आपके हाथ में नहीं है, वो विद टाइम इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यू प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। तो डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज में, और डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज किसी भी फील्ड में बनाए जा सकते हैं। आपने जिस भी चीज को अभी कमिट कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी इंजीनियरिंग को कमिट किया हुआ है तो उसमें डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज बनाई, आपने अभी अकाउंटेंसी को कमिट कर रखा है, उसमें डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज बनाई, इधर उधर भागने की जगह शॉर्टकट्स ढूंढने की जगह डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज ही फर्स्ट स्टेप होते हैं टू लिव एन अबंडेंट लाइफ। उसकी वजह से फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा, आप उस चीज में अच्छे हो जाओगे। यू नीड टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। आवर ब्रेन इज ऑलवेज चेंजिंग। You are as smart as Albert Einstein.
ठीक है, आवर ब्रेन इज ऑलवेज चेंजिंग। आपको बस एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है, कोई भी एक चीज जिस पे आपने ऑलरेडी कमिट कर रखा है। ये मत सोचना कि कोई ऐसी जादुई चीज होगी जिस पे आप कमिट करोगे वो बहुत आसान होगी और उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे। हर चीज जिसमें भी आप कमिट करोगे वो एक टाइम के बाद डिफिकल्ट बनेगी ही बनेगी, चाहे वो पॉडकास्टिंग हो, चाहे रीडिंग हो, कुछ भी। उस डिफिकल्टी से निकल कर ही आप एक्चुअली उसमें एक्सपर्टीज और डिसिप्लिन हासिल करते हो। पर ज्यादातर लोग उस डिफिकल्टी के स्टेज पे पहुंच के सोचते हैं यार ये मेरा पैशन नहीं होगा, तभी डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, चलो कुछ और करते हैं। ऐसा नहीं है। जिस चीज को कमिट कर रखा है ऑलरेडी उस चीज को कमिट करो। एटलीस्ट 3 साल के लिए कंप्लीट फोकस सिर्फ उसी चीज पे डाल दो, तो डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज के उसमें जाना शुरू कर दोगे और उससे फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी। और फ्यूचर में इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके आप अपना पैशन फिगर आउट कर सकते हो लाइफ में। ओके, बट नाउ दैट यू मेंशन कि कमिटमेंट, बट वो कमिटमेंट स्टेज आने से पहले, लेट्स से इफ आई डोंट इवन नो कि मेरे को किस चीज को कमिट करना है, तो वो एक एक्सप्लोरेशन स्टेज भी होना चाहिए जहाँ पे यू आर सपोज्ड टू एक्सप्लोर। अगेन इफ यू कैन अफोर्ड एक्सप्लोरेशन इट्स वेरी गुड, बट इंडिया में ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बेसिक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर स्कूल से निकल रहे हो तो स्कूल में अगर आप एवरेज स्टूडेंट थे 60-50% वाले, कोई तो एक सब्जेक्ट होगा जिसमें सारी सब्जेक्ट में 55 आ रहे हैं पर उसी सब्जेक्ट में 61 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको उठा लिया। सिमिलरली कॉलेज में आप गए, कॉलेज में भी कोई तो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, तो वो एक तरीके से एक्सप्लोरेशन की स्टेज को आप बाईपास कर सकते हो उस चीज़ में कमिट करके। वन अनदर वे ऑफ चीपेस्ट वे ऑफ एक्सप्लोरिंग इज बायोग्राफीज। आप बायोग्राफीज रीड करो फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इंजीनियर था तो मैं इलॉन मस्क को लेकर बहुत पैशनेट था कि मुझे उसके जैसा टेक एंटरप्रेन्योर बनना है बहुत ज़्यादा। पर जब मैंने इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ी ना, मैंने साइकोलॉजिकली उसकी वो जर्नी जी ली उस बायोग्राफी के थ्रू, है ना। 8 आवर्स में मेरे को पता चल गया कि व्हाट ऑल इट विल टेक टू बिकम टेक एंटरप्रेन्योर लाइक हिम, कितना उसने सैक्रिफाइस किया है। एंड मुझे पता चल गया ये सब मैं नहीं कर सकता, तो वो एंटरप्रेन्योर का भूत वहां से चला गया। एंड वो भी एक चीप एक्सप्लोरेशन स्टेज के थ्रू, मुझे करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़े, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना पड़ा, उसकी जर्नी पढ़कर मुझे पता चल गया। सिमिलरली आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आपके क्योंकि बहुत सारे डिजायर्स हमारे ना टीवी देखकर, न्यूज देखकर क्रिएट हो जाते हैं। अब इलॉन मस्क वाला डिजायर न्यूज से ही क्रिएट हुआ, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैंने इतनी रीडिंग नहीं करी थी, डिटैचमेंट वगैरह कुछ नहीं पता था, न्यूज ये दिखाती थी अब इलॉन मस्क इतना करोड़पति हो गया, अब इतने $1 बिलियन का हो गया, तो सबके दिमाग में वही कि वही बनना है इंजीनियर होके। जब एक्चुअली में उसकी जर्नी रीड करी तो मुझे पता चला कि ओह दिस इज व्हाट इट टेक्स, मेरे को उस जर्नी पे नहीं जाना, है ना। इट्स नॉट फॉर मी, किसी और के लिए हो सकती है। उसकी जगह मैं बराक ओबामा की जर्नी से ज्यादा इंस्पायर हुआ। जब बराक ओबामा की बायोग्राफी पढ़ी तो बराक ओबामा ने क्या किया था, अपनी जॉब छोड़ के ब्लैक लोगों की हेल्प में वो लग गए थे। एंड उसके बाद उन्होंने लॉ करी एंड उसके बाद ही बिकेम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। तो उनकी जर्नी मुझे ज़्यादा रिलेटेबल लगी, तो उनकी जर्नी ने मुझे इंस्पायर किया। अपना इंजीनियरिंग छोड़ के, जब मैंने रीडिंग कर ली थी, डिटैचमेंट सीख लिया था, कि इंजीनियरिंग छोड़ के साउथ एशिया में जो डिटैचमेंट प्रिंसिपल्स हमारे ही स्क्रिप्चर्स से आए हैं हम ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो साउथ एशिया में वो डिटैचमेंट के प्रिंसिपल्स लेके जाना और हेल्प करना एज मैनी पीपल एज पॉसिबल कि वो डिटैचमेंट के थ्रू एक्सीलेंस की तरफ जा सके। एंड एक्सीलेंस विल ऑलवेज लीड टू फाइनेंशियल अबंडेंस एंड एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ, and ultimately freedom as well. सो बेसिकली चीपेस्ट वे टू एक्सप्लोर इज थ्रू बायोग्राफीज। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो लुक एट द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड कि मेरे किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एंड उन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज करने की कोशिश करी। ऑल्सो जब हम बात करते हैं लिमिटिंग बिलीव्स की, तो एक तो हमने इसमें ये डिस्कस किया कि लोगों को यही नहीं पता होता है कि सक्सेस के मायने क्या हैं। ठीक है, अभी मुझे पता लग गया है कि परहैप्स दैट अल्टीमेट फ्रीडम, दैट सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाट आई शुड बी चेजिंग। बट देन अगेन मेरे अंदर लेट्स से बहुत फियर है, फियर की परहैप्स जो चीज में मैं कमिट करना चाहती हूँ आई विल नॉट सक्सीड। व्हाट इफ आई विल नॉट सक्सीड इन दिस, देन you know my life would be like कुछ नहीं रहेगा। So how to overcome ये सारी beliefs? Okay, so very good question. इसके लिए ही हमें philosophy should be the backbone of your life. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी सिंपलेस्ट लाइफ जी थी उन्होंने, है ना। सिर्फ खादी के कपड़े पहनते थे, एकदम सिंपल रहते थे। उनके पास इतने गिफ्ट्स आते थे, इतने ऑफर्स आते थे, सारी टेम्पटेशंस को वो दूर करते थे, और उसके पीछे रीज़न था वो दिन में 4-4 घंटे भगवद गीता पढ़ते थे। ठीक है, इवन नाउ अगर आप उठा लो हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट जो ब्रेन स्कैन से पता चले हैं वो थे बुद्धिस्ट मंक्स। Okay, Buddhist monks were the happiest people on the planet. Buddhist monk spends hours and hours of their time reading scriptures every day. ठीक है, अब hours and hours तो मैं नहीं बोल रहा क्योंकि और भी काम होते हैं हमारे पास करने के लिए, but reading your scripture for at least 30 minutes every day will clear all the rubbish from the mind. तो basically हमारा mind हमारे teeth की तरह है। हम 5 दिन
ब्रश ना करें तो आर माउथ विल स्मेल, आर टीथ विल स्टार्ट पेनिंग, हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे। सेम थिंग गोज विद आर माइंड। अगर हम माइंड को रेगुलरली ब्रश ना करें फिलॉसफी के थ्रू, तो वो माइंड जंक एक्यूमुलेट कर लेगा बाहर के ओपिनियन से, बाहर की टॉक से, एंड वो जंक रोज क्लियर करना इज आवर ड्यूटी। एंड यही बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि स्कूल ने, पेरेंट्स ने हमें बॉडी साफ करना सिखाया पर रेगुलरली माइंड साफ करना नहीं सिखाया, है ना। एंड ये चीज़ पहले होती थी, पहले हमारे यहाँ पे भी स्क्रिप्चर्स दिन में 2-2 3-3 बार पढ़े जाते थे, पहले क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल 2-2 3-3 बार पढ़ी जाती थी। बट द चेज ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, चेज ऑफ मनी, इन सब चीज़ों से हमें दूर ले आई, जहाँ पे हमने सब सैक्रिफाइस कर दिया इन चीज़ों के चक्कर में। बट इन दी एंड अगर आप देखोगे स्टीव जॉब्स के सक्सेस के पीछे व्हाट वाज द रीजन? स्पिरिचुअल बुक कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे रेडिकल स्टेप्स लिए थे जो उसके खुद के टीम मेंबर्स कहते थे व्हाट आर यू डूइंग। फॉर एग्जांपल एप्पल स्टोर स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे उसे बोलते थे फोन के लिए कौन स्टोर खोलता है, सारे फोन एक ही स्टोर पे बिकते हैं, कोई अलग से एक कंपनी अपना स्टोर नहीं खोलती। कपड़ों के लिए स्टोर खोलते हैं, लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, फोन खरीदने कोई नहीं जाता। पर जब एप्पल स्टोर खुला ना, उसने उस टाइम के जितने भी क्लोथिंग ब्रांड्स थे उनसे भी ज्यादा सेल करी। स्टीव जॉब्स ने क्राउड की बिल्कुल नहीं सुनी, और उसके पीछे रीजन, वो हर दिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते थे, वो अपने साथ कैरी करते थे उस बुक को। और जब उनकी डेथ हुई थी तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वाज गिवन एज अ गिफ्ट टू एवरीवन जो उनके उस पे आए हुए थे, डेथ उस पे, तो सबको वो गिफ्ट करी गई थी। तो फिलोसफिकल बैकबोन शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ अगर आप इस पाथ पे जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा पाथ लोगे जो क्राउड ने नहीं ले रखा, तो उस पाथ पे हमेशा फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आपको डराएगी। और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इसलिए डराएगी क्योंकि फ्यूचर में आपको किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होगी। पर जब आप फिलॉसफी को बैकबोन बना लोगे, फिलॉसफी आपके दिमाग से रिजल्ट्स की पूरी इच्छा ही हटा देगी और आपको सिर्फ काम से प्यार करना सिखाएगी। चाहे वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो, चाहे वो हिंदू फिलॉसफी हो, चाहे वो बाइबल हो, कोई भी। जो बाइबल और कुरान में बोला गया है भगवान पे सारा काम दे दें हम, हमारे उसमें बोला गया है काम से प्यार करो और भगवान पे सारा छोड़ दो। एंड बुद्धिज्म में तो भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो कहते हैं एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, सो लिव योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग ऑल योर सेंसेस एंड बीइंग फोकस्ड, रिमेंबरिंग एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। तो वहां से भी हिम्मत आ जाती है कि जब सब कुछ इम्परमानेंट है तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं फ्यूचर से। जब फ्यूचर से कुछ चाहिए नहीं होता तब आप किसी चीज में कंसिस्टेंट हो पाते हो। Wow, I mean, that's deep. आपको आवर्स पे ध्यान देना है। 10,000 आवर्स आपने किसी भी फील्ड में एक्यूमुलेट कर लिए, आप उस फील्ड में टॉप 1% में आ जाओगे। 10,000 आवर्स एक्यूमुलेट करने के लिए आपको 6 आवर्स एवरीडे फॉर 5 ईयर्स दिया, 10,000 आवर्स एक्यूमुलेट हो गए। चाहे वो चेस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें 10,000 आवर्स एक्यूमुलेट कर लिए, आप उसमें टॉप 1% में आ जाओगे। एंड आपको फाइनेंशियल अबंडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो योर आवर्स शुड बी द की, एंड उन आवर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए आपको सारी नॉइस को फिलॉसफी के थ्रू साइलेंट करना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, आपको बार बार अपने आप को ये याद दिलाना पड़ेगा, एक बारी मैंने 10,000 आवर्स एक्यूमुलेट कर लिया, आई विल बी सो स्किलफुल, जो आज बुराइयां कर रहे हैं वही अच्छाई करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी मूवी में दिखाए गए हैं। दंगल मूवी उठा लो, जहाँ पे लड़कियों को वो रेसलिंग करा रहा है, पूरी सोसाइटी उनको अगेंस्ट होती है, पर वो अपने 10,000 आवर्स एक्यूमुलेट कर लेती है, सब कुछ झेल कर भी सोसाइटी का, उन सब चीज़ों को क्वाइट करके अपने 10,000 आवर्स कर लेती है इकट्ठे दोनों लड़कियां, और कैसे एक्सेलेंट रेसलर्स बन जाती है। फिर पूरी सोसाइटी ही उनके पास आती है कि हमें भी रेसलर बनाओ। तो एक 10,000 आवर्स के मेट्रिक को अपने सामने रखना है और उस 10,000 आवर्स में लग जाना है कि 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स मैटर्स। Now, since we are talking about everyday day-to-day life, एक और important चीज आती है जो habits से related है. So, in your opinion, breaking a habit is more difficult या building a new one? सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू, कि वो अपना ज़्यादातर टाइम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि इन बैड हैबिट से कैसे छुटकारा पाएं। एंड बैड हैबिट से आप नहीं छुटकारा पा सकते, क्योंकि वो बैड हैबिट्स बनी ही इसलिए है क्योंकि वो आपके किसी साइकोलॉजिकल लूप होल को एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, शुगर की हैबिट इसलिए बनी है क्योंकि जंगल में शुगर मिलना बहुत मुश्किल था, तो हमारे माइंड ने एक हाई डोपामिन सेंटर बना लिया उसका कि तब जब भी हमें शुगर मिले तो हमें अच्छा फील हो बहुत, और हम और शुगर के लिए मेहनत करें। तो शुगर की चीज़ें इसलिए एक्सप्लॉइट करती है। सिमिलरली सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया भी आपकी उसी साइकोलॉजिकल लूप होल को एक्सप्लॉइट करता है। एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये 3 चीज़ें हमेशा एम्पलीफाइड रहती है सोशल मीडिया पे। पॉलिटिकल एंगर होता है, या फिर कोई लस्टी कंटेंट होता है, फिर ग्रीडी कंटेंट जो अमीर कैसे बने ये दिखा रहा होता है, वो भी आपके साइकोलॉजिकल लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर रही होती है। तो जब तक चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, आप उनसे फाइट नहीं कर सकते। सो ईजियर पाथ इज बिल्डिंग माइक्रो हैबिट्स। मैं आजकल कहता हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स जैसी हैबिट, फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड रीडिंग कितनी बार करी दिन में? 5 बार 30 सेकेंड रीडिंग करी, दैट 30 सेकेंड रीडिंग इज योर न्यू रील।
30 सेकंड एक्सरसाइज, दैट 30 सेकंड एक्सरसाइज इज योर न्यू रील। कितनी बारी 30 सेकंड पुशअप्स किए हमने दिन में, है ना? ऐसे कर करके जब इन न्यू हैबिट्स को बिल्ड करोगे 30 सेकंड्स, 1 मिनट, हाँ, ये हैबिट्स एक्सपैंड होके बुरी हैबिट्स को अपने आप हटाएंगी। पर आप सिर्फ फोकस बुरी हैबिट्स को हटाने पे रखोगे, आप उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आप उन बिलियन डॉलर से लड़ रहे हो जहां पे मिलियन डॉलर्स दे देकर साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को जॉब दी जा रही है कि तुम्हारे लूप होल्स को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। आपके पास ना वो नॉलेज है, ना वो मेंटल स्ट्रेंथ है कि आप उनसे लड़ सको। बट आपके पास चॉइस है कि एक अच्छी हैबिट बना सको जो एक्सपैंड होके इन हैबिट्स को साइड कर देंगी। ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स, ऐसी कोई मॉर्निंग या नाइट हैबिट्स होनी चाहिए या परहैप्स यू फॉलो? मॉर्निंग हैबिट, स्टार्ट योर डे विद फिलोसफी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट हैबिट, एंड योर डे विद अ नाइस लॉन्ग वॉक, जिसमें दिन की सारी नेगेटिविटी, सब माइंड क्लियर हो जाएगा उस वॉक से, एंड यू विल हैव अ गुड स्लीप। Okay. And I think, yeah, I mean, gratitude also can be. ग्रैटिट्यूड ऑल्सो कैन बी वन ऑफ you दोज can- हैबिट्स, है ना? हाँ. फिलोसफी उसी चीज को इंस्टिल करती है ना? फिलोसफी जब आप पढ़ोगे, वो ग्रैटिट्यूड के थ्रू ही आपको फ्यूचर रिजल्ट्स पे से ध्यान हटाना सिखाएगी, और साइकोलॉजिकल चीजें बताएगी कि कैसे आप करंटली जो फ्लो स्टेट में हो वो आपको आपकी जिंदगी बढ़ा रही है, आपको हेल्दी बना रही है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए इस काम से? And do you think even our day-to-day diet also matters? यस, वेरी मच। तो कम से कम खाओ बेसिकली। हाँ, बुद्धिस्ट मंक्स यूज्ड टू ईट जस्ट वंस अ डे। अभी भी देयर इज अ गाय कॉल्ड ब्रायन जॉनसन जो इंडिया भी आया था और बीच इंटरव्यू में छोड़ के चला गया था बिकॉज ऑफ Because of पोल्यूशन। pollution, yeah. ही ईट्स वंस अ डे, है ना? तो कम से कम खाओ। आर बॉडी इज मेंट टू सर्वाइव ऑन हैंडफुल ऑफ फूड। हम देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी कॉल्ड मैन फ्रॉम अर्थ, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि कैन अ ह्यूमन बीइंग लिव फॉर लॉन्ग, एंड वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी बॉडी 190 साल जीने के लिए बनी है, बट वी डाई सूनर बिकॉज ऑफ स्लो पॉइजनिंग, क्योंकि हम अपने आप को इस खाने से पॉइजन करते रहते हैं। Wow. तो वो मैंने खुद अपनी डाइट कट डाउन करके ट्वाइस अ डे कर दी है, तो 6 PM के बाद आई ईट नथिंग, एंड इट्स इट्स बायोलॉजिकली प्रूवन एज वेल कि अगर आपका लास्ट मील और फर्स्ट मील में एटलीस्ट 12 to 15 आवर्स का गैप हो तो आपकी बॉडी में हीलिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में रात को 9-10 बजे खाकर सोते हैं। True. उसकी वजह से क्या होता है कि रात का टाइम बॉडी का होता है आपकी मेमोरी को असेंबल करने का और आपकी बॉडी को हील करने का, पर वहाँ एनर्जी जा ही नहीं पाती क्योंकि उस टाइम बॉडी बिजी रहती है आपका खाना डाइजेस्ट करने में। तो इस वजह से रात के टाइम खाना एक्चुअली स्टॉप्स द हीलिंग प्रोसेस, जो आपके लिए फैट एक्यूमुलेट करता है और बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से दिक्कतें होती है। तो येस, डाइट प्लेज अ रोल एज वेल, बट अगेन हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ फिक्स नहीं कर सकते, है ना? तो मैं किसी को भी स्ट्रेस में नहीं डालना चाहूँगा कि कल जाके सुबह रीडिंग करो, फिर रात को वॉक पे जाओ, फिर डाइट भी चेंज 6 बजे के नहीं। बाद। सिर्फ आप एक ही चीज़ पे ध्यान दो अभी कि डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज़। एक पढ़ाई पे कमिट किया और उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करी, नेक्स्ट 3 साल तक कुछ नहीं सुना और उसमें एटलीस्ट 10,000 आवर्स एक्यूमुलेट करने की फोकस करी, क्योंकि इन द एंड आप देखोगे जेफ बेजोस को भी देखोगे आप, कितना मस्कुलर और फिट हो गया है वो, बट जब वो अमेजॉन बिल्ड कर रहा था वो इन सब चीज़ों पे जीरो फोकस था उसका, वो दिन रात बस कोडिंग करता था। जब एक बारी वो एक्सीलेंट बन गया और फाइनेंशियल अबंडेंस आ गया तो वो अपने आप बैलेंस लेकर आ गया लाइफ में कि हाँ मेरे को मेडिटेट करना है, एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ करना है ना? तो वो आना चाहिए, बट वो एक्सीलेंस के बाद आना चाहिए। एक्सीलेंस शुड बी प्राइमरी। Okay. Wow. So even हैबिट्स की ही अगर हम बात करें तो इससे मल्टीपल हैबिट्स एक साथ लेके चलना चाहिए नहीं, या फिर यू कैन नहीं। जस्ट फोकस ऑन परहैप्स 1 to 2? हाँ, मल्टीपल हैबिट्स भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो पाते। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इमेजिन योर सेल्फ ऑन अ बोट, ठीक है? उस बोट में बहुत सारे होल्स हो रखे हैं और हर होल से पानी आ रहा है, हाँ ठीक है, पर उसमें एक बहुत बड़ा होल है जिससे सबसे ज़्यादा पानी आ रहा है। तो या तो आप स्ट्रेस होकर वो सारे होल्स कवर करने की कोशिश करो और डूब जाओ, या फिर आप सिर्फ उस बड़े होल पे फोकस करो, उसको फिक्स किया, कॉन्फिडेंस आ गया, अब छोटे छोटे होल भी फिक्स कर दोगे। सेम चीज़ ज़्यादातर लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा होल है लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड एक्सपर्टीज, कि ना वो किसी चीज़ में डिसिप्लिन है ना किसी चीज़ की एक्सपर्टीज है। सबसे पहले उस बड़े होल को फिल करो, फिर बाकी मेडिटेशन और ये सारे होल भी अपने आप फिक्स कर लोगे इवेंचुअली। सो जब आप डिसिप्लिन भी बोल रहे हो, यू आर ऑल्सो इंक्लूडिंग योर डे टू डे रूटीन एज वेल, कि हमें कब सोना है, कब जागना है? नहीं, मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों पे फोकस करो। आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो, ऑब्सेशन। ऑब्सेस हो जाओ 3 से 5 साल के लिए 10,000 आवर्स एक्यूमुलेट करने के लिए, ऑब्सेस हो जाओ ये सारी चीज़ों पे, क्योंकि अगेन वही है कि ये सारे माइनर होल्स है
जिनको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे, पर अगर एक बार हम एक्सपर्ट हो गए, ऑब्सेस हो गए एक चीज़ के लिए, उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। Okay, ठीक है. So now we'll have a short rapid fire segment with sure. you. Okay. First question, journaling or meditation for you? Journaling. Journaling, okay. One belief that you have now completely let go of. That I need to become better than anyone else. कि मेरे को इस चीज़ में इससे बेटर होना है, या अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होकर दिखाना है. I've completely let go of. Perhaps after the rapid fire, we'll take this comparison wala segment as well. How people are in this constant loop of comparing. Okay, early mornings or late nights? Early morning. Early mornings. Your guilty pleasure habit or Sugar food. So I Sugar treat myself. Okay, So that is my guilty pleasure. okay. Detachment in one word. Freedom. Freedom. Discipline or motivation? Discipline. Discipline. Okay. If you could have coffee with any one writer, who would you like to have? Nikos Kazantzakis, the writer of Zorba the Greek. Okay, okay, all right. If you could have one superpower, what would it be? One superpower. I want to be in a writing flow state for as many hours as I'm awake. Okay. That will be. Okay. Because writing actually changes the consciousness of the society. Okay. An idea or philosophy that you are currently exploring? Purposeless art that do something without any purpose. So purposeless art. So that is something which is very fascinating me. So Lal Singh Chaddha आई थी, देखी थी आपने? तो लाल सिंह चड्ढा इज अ रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप, हाँ, है ना? बट लाल सिंह चड्ढा ने उस कॉन्सेप्ट को रुइन कर दिया उसमें रिलीजन डाल के. बट फॉरेस्ट गंप इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पर्पसलेस आर्ट. सो बेसिकली देयर इज अ वेरी गुड बुक कॉल्ड ज़ेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी, जिसमें देयर इज दिस वेस्टर्न गाय जो ज़ेन मंक के पास जाता है और उससे वो आर्चरी सीखने जाता है कि कैसे आई नीड टू बिकम अ वेरी गुड आर्चर. तो ज़ेन मंक उसे सिखा रहा होता है कैसे आर्चरी इज ऑल अबाउट मेकिंग द बो एंड एरो पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना? ब्रीदिंग के साथ इन आउट हो रहा है सब कुछ. तो जब उसके सामने गोल आ जाता है कि टारगेट पे हिट करना है, तो बार बार उस फिलोसोफर से पूछता है कि टारगेट पे कैसे हिट करूं, मैं टारगेट पे तो हिट ही नहीं हो रहा. तो फिलोसोफर कहता है कि योर वांट फॉर सक्सेस इज मेकिंग यू फियरफुल ऑफ फेलियर एंड दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम फीलिंग द फुलफिलमेंट फ्रॉम द आर्ट. ठीक है. सो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 बच्चों के ग्रुप लिए गए थे. एक ग्रुप को बोला पेंटिंग करो, दूसरे ग्रुप को भी बोला पेंटिंग करो. तो पहला ग्रुप, दोनों ग्रुप बहुत हैप्पी पेंटिंग कर रहा है पर्पसलेसली, किसी को इंप्रेस नहीं करना, कुछ नहीं करना. ठीक है. फिर दूसरे ग्रुप को पैसे देने शुरू कर दिए फॉर एवरी पेंटिंग, है ना, कि यू विल गेट $1 फॉर एवरी पेंटिंग. ठीक है. तो दूसरे ग्रुप ने भी पेंटिंग करे, पहले ग्रुप ने भी. फिर दूसरे ग्रुप से वो डॉलर बंद कर लिए कि नहीं मिल रहे उन्हें, उन्होंने पेंटिंग करनी बंद कर दी. पर जो फर्स्ट ग्रुप था वो पेंटिंग करता रहा क्योंकि पर्पस ही नहीं था. वो आर्ट से इतना एंजॉय फील कर रहा था, पर्पस ही नहीं था कुछ उस आर्ट का. तो सेम कॉन्सेप्ट पर्पसलेस आर्ट कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उससे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई पर्पस ही नहीं है वो चीज़ करना है. क्योंकि इन दी एंड मैंने आपको बताया लाइफ का कोई पर्पस नहीं है. ठीक है. आप कुछ भी सोच लो, डेस्टिनी है मेरी, भगवान ने इसलिए बनाया है, इसलिए बनाया, ऐसा कुछ नहीं है. आप बायोलॉजी उठा के पढ़ो, हिस्ट्री उठा के पढ़ो, आपको पता चलेगा देयर इज़ नो पर्पस टू लाइफ. तो अगर आप जैसे ही पर्पस ऐड कर देते हो किसी भी चीज़ में, आप अपने लिए फ्यूचर एंजाइटी क्रिएट कर देते हो. आप अपने लिए एक ये डेस्टिनी वाला टैग लेकर अपने लिए ही ट्रबल क्रिएट करते हो. तो पर्पसलेस आर्ट इज़ एक्चुअली अ क्योर फ्रॉम ऑल दोज एंजाइटी, वेयर आप जो वो आर्चरी सिखा रहा होता है वो आर्चर को यही बोलता है कि बस तू आर्चरी से अपने एरो को छोड़ने को एंजॉय कर, दैट्स इट. कुछ एरोज लगेंगे टारगेट पे, कुछ नहीं लगेंगे, पर तुझे फ़र्क नहीं पड़ता. तू वो आर्चरी ही इतने अच्छे से एंजॉय कर रहा है. देयर इज़ नो पर्पस टू दिस कि तुझे इससे कोई टारगेट हिट करना है. तो अपने आप वो बो एंड एरो बॉडी का इतना अच्छा पार्ट बन जाएगा कि सबकॉन्शियसली जब भी उसकी नज़र जहाँ जाएगी सीधा एरो वहीं जाके लगा करेगा. क्योंकि कभी उसने सक्सेस पाने के लिए वो एरो नहीं छोड़ा था, एरो छोड़ने के आर्ट को मास्टर करने के लिए वो चीज़ सीखी थी उसने, और वो चीज़ उसने मास्टर कर ली बिकॉज उसने उस चीज़ को एंजॉय किया, ना कि टारगेट हिट करना सीखा.
तो वो बहुत पैराडॉक्सिकल टॉपिक है ये, पर्पसलेस आर्ट। फॉरेस्ट गम बहुत अच्छी मूवी है, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि एक जो मेन कैरेक्टर है वो कैसे मल्टीपल चीज़ों में एक्सेलेंट होता रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड का पर्पस होता है मेरे को एक सिंगर बनना है बहुत बड़ा, उस पर्पस को फॉलो करते करते वो ड्रग्स में गिव इन कर देती है और पूरे अलग पाथ पे चली जाती है। उसका जो एक और दोस्त होता है, उसका होता है पास्ट में पर्पस कि यार मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, तो इस वजह से वो प्रेजेंट को कभी नहीं जीता। पर जो मेन कैरेक्टर है उसका कोई पर्पस ही नहीं है। उसके पास टेनिस आता है, वो टेनिस में बहुत अच्छा हो जाता है। उसके पास गन बनाने के लिए आर्मी में जाने का आता है, वो आर्मी में बहुत अच्छा हो जाता है। कोई पर्पस ही नहीं था उसके पास, बस जो आ रहा था वो सरेंडर किए जा रहा था विदाउट थिंकिंग अबाउट डेस्टिनी और नथिंग। And I think this is also reminding me. मैं किसी तो podcast में I was listening somewhere about neuroplasticity, and this person was speaking कि when your brain, जब आप बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस लाते हो अपनी लाइफ में एंड योर ब्रेन स्टिमुलेट्स, तब वो न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीजेस अ लॉट इंस्टेड वर्सेस कि आप किसी एक चीज में ही उसमें डेली लगे रहो दैट ब्रेन नेवर डेवलप्स लाइक दैट। एग्जैक्टली। बट अगेन उस पर्पसलेस आर्ट तक आने के लिए वो 3 पिलर जरूरी है: फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस, एक्सीलेंस एंड डिसिप्लिन। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स वो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप मत चले जाना पर्पसलेस आर्ट में। अभी आपके लिए डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कमिट करके डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज़ बनाना, सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हो जाओगे। उसके बाद पर्पसलेस आर्ट वाले फॉर्म में जा सकते हो। अगर आप पर्पसलेस आर्ट अप्लाई ही करना है तो एक चीज़ कर सकते हैं एज स्टूडेंट्स कि 5 सब्जेक्ट है, 5 में से 4 सब्जेक्ट मार्क्स के लिए पढ़े, पर एक सब्जेक्ट बस उस सब्जेक्ट के प्यार के लिए पढ़ा कि मुझे इससे इतना प्यार है इस सब्जेक्ट से कि मेरे को मार्क्स से मतलब नहीं है, मैं इसमें और डीप जाता रहूँगा। तो वहाँ पे एक छोटे वे में आप पर्पसलेस आर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स के लिए पढ़े और एक सब्जेक्ट सिर्फ उसके प्यार के लिए पढ़ा। तो वहाँ पर इट कैन बिकम रियली रियली गुड फॉर यू। ओके, ठीक है। Okay, so coming back to the rapid fire, if you could close your eyes and land in any place in the world right now, where would you want to be? I think London Library. Okay. Your soul/spirit animal, if there's one. Oh, never thought about this. Okay. I can talk about someone I really admire as a person from the past. So, Nikos Kazantzakis is one. Rabindranath Tagore is another. Okay. Someone I really admire. Someone that you look up to. And maybe someone you look up to in the present? In the present, someone I look up to. India mein, let me think. Indian intellectuals I haven't explored yet, but Bahar, because I've lived in England a lot, so वहाँ पे there are many intellectuals. One of the guys who's really popular these days is the author of Maniac, Benjamin Labatut. Okay, he the way he's writing the stories, he's taking human imagination and वो भी इन्हीं चीज़ के around ही stories लिखता है. Brilliant. Okay. All right, ठीक है. So that's the rapid fire round for us. So now moving on from the rapid fire, there's another segment wherein I'll give you a situation which is, I think, which will be a common situation a lot of people might be facing, and perhaps you can advise me some mindset shift which can be applicable for that situation. Okay. So just 2 to 3 situations we can discuss. So I think the first one would be. Okay, so I'm coming to you and I'm saying, Daksh, I recently got laid off from my job. Perhaps because I was not as good in it as the others. Now I'm 30 years old. I have to handle my finances. I have to look after my family. I don't know what to do. I'm looking for other jobs, but at the moment I do not have any. What should I do? Like I'm really frustrated right now. Okay, so basically losing a job is a very good opportunity to rebuild yourself. Okay, it gives you the freedom to choose any career you want now. Okay, and first of all, you need to give up the stigma of the age anxiety which the society puts into your mind कि 25-year-old job नहीं है, 30-year-old job नहीं है, क्या कर रहे हो घर पे बैठ के. You need to completely see, the thing is, first thing, whenever society says something to me, I look at the society and I ask myself, 95% of the people in society are living a dead life, so why would I want to please them? Okay, why would I try to please the people who themselves are living a dead life? First, get rid of that anxiety. Second thing, make sure you have at least 6 months of finances in place to cover your food, clothing and shelter. If not, then finding the job should be your top priority. Put a goal of applying for at least 5 to 10 jobs every day.
Okay, that should be a top priority if your food, clothing, shelter is not sorted. If they are sorted, then your top priority could be building yourself into a new career if you want to, if you don't enjoy your current career, because most probably you've been laid off because you were a mediocre employee. You weren't good at what you were doing. So go back to the drawing board, pick up a skill, commit for 3 weeks first. Don't start with the commitment कि मेरे को 3 साल इसी में commit करना है. Start with just 3 weeks, then go to 3 months, then go to 6 months. There is a first 20-hour rule. So basically, first 20 hours of any skills are very, very important. There's a very beautiful TED talk on it as well. That you can learn 80% of any skill if you put in the first 20 hours really well into it, 20 hours of practice. So start with those 20 hours, take it up to 100 hours. 100 hours of practice in coding, in singing, in anything will put you into a much better position where you'll know the depth of the new field. And then you can start looking for a career in that new field if you want to. But the first priority, food, clothing, shelter sorted. If they are sorted, then you can go on to this part. If they are not sorted, first ignore the society, apply for 10 jobs every day because you're doing it for your food, clothing and shelter, not because of the pressure from the society. And then you can build your career into anything you want. And that is why I say losing a job is a very good opportunity to build yourself into anything you want. If you keep away the age anxiety, कि मेरी age हो गई है, मैं नहीं कर सकता. Recently, India only, there was this lady who was 93-year-old. She started running at the age of 93-year-old and she got awarded by the president at the age of 100. So there is, ये age anxiety बस society की made up है, जो मैंने psychological experiment में भी बताया था कि 75-year-old से 55-year-old वाली बातें करोगे, अचानक से everything starts changing for them. Okay. ठीक है. Second situation, I'm coming to you and I'm saying, Daksh, I have a job, a full-time job. It's going okay. I'm earning my monthly salary. But somehow, right now, I feel my heart is not in it anymore. I want to travel the world. And I don't know what I'll do, how I'll earn money while traveling. I have not figured that out yet. But if I want to do that, perhaps I'll have to leave this job, which is paying me every month. All my friends and family think it's a bad idea. I shouldn't be doing it. A well-paying job, I'm just leaving for traveling. So what should I be doing right now? So is your question, does your question mean how can you do this, or does it mean is it viable or not? I think the first question is, should I go for it? And the second is, how should I go for it? See, as I said, if your food, clothing, shelter is not sorted, you won't enjoy your traveling as well. Okay, so the whole traveling experience becomes more enjoyable if you are little financially abundant and your food, clothing, shelter are sorted. So instead, see, this is the issue with most of the employees, people who are working in a job. They know that their heart is not into the job. So the topmost priority thing they should be doing is build a new skill to get a better job where they actually enjoy. But it is very difficult to do. Why is it difficult to do? Especially when you have a job, because once your food, clothing and shelter is sorted with a job, mentally you are, in that position where you are safe. Okay, and now you don't want to build new habits or you don't want to do new stuff. Your mind doesn't let you. So the next best thing you can do is commit to a NGO or a charity. Okay, and trust me, once you start committing to that NGO or a charity, for example, the NGO of picking up rubbish from Yamuna, there are so many NGOs trying to pick up rubbish from Yamuna. There are so many NGOs trying to look after animals. If you commit to that, commitment will push you out of your comfort zone. And once you start doing hands-on stuff that contributes to the society, you will start finding happiness. And that commitment to NGOs and charities will bring you travel opportunities as well. That will eventually surprise you that, okay, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हो जाएगा. Okay, there is a very interesting guy called Malahar in Mumbai. Okay, and that guy is actually cleaning all the Mumbai beaches. And उसकी वजह से he is hardly in his mid-20s. उसको इतनी traveling opportunities मिल चुकी है because of his cleanliness initiative. Okay, so this would be the middle path that I would recommend कि कोई अगर अपनी job छोड़ के और अगर financially abundant नहीं है, travel करना चाहता है, instead of focusing on that, focus on these experiences, क्योंकि ये NGO charity के experiences भी आपको अपनी city में ही travel करवाएंगे. और जब आपने इनमें full commit किया तो ये लोग आपको push करेंगे और जगह इनके messages पहुँचाने के लिए. ओके, चाहे वो चर्च की कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई इस्लामिक कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई हिंदू कम्युनिटी हो. इस्कॉन ज्वाइन कर लिया आपने, वो भी बहुत कम्युनिटी वर्क करते हैं. तो इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो. यू विल फील मोर अलाइव इन योर ओन लाइफ, क्योंकि ये कोई अच्छा पर्पस लेकर आएंगे. एंड
मेरे को भी इसी के थ्रू ही अपना पर्पस मिला था। सबसे पहले मैंने इंडियंस की हेल्प करने से पहले ब्रिटिश की हेल्प करने का ही सोचा था इंग्लैंड में, वेयर आई जॉइंड एन एनजीओ जहाँ पर मैं बच्चों को कोडिंग सिखाता था, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वाज गुड एट। एंड वहाँ से इवेंचुअली थिंग्स फ्लरिश्ड आउट कि कोविड आया, मेरे को था कि और भी चीज़ें सिखानी है मुझे, पर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड एवरीथिंग रोल्ड ऑन फ्रॉम दैट। बट दैट कमिटमेंट वॉज द थिंग दैट ब्रॉट मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। Wow. Okay. So I think this is something जो कि शायद a person coming up with this problem सोचा भी नहीं था that this can also be a way out. Okay. Last situation and I know we were discussing off camera कि जो relationship problems हैं, perhaps you are not as interested in them because there are so many layers to it. But I think I'll just put up one situation wherein the person is saying that I am in a relationship. It is a committed relation, everything is going good, but I feel there is no romance. I feel there is no passion. The kind that we see in movies, the kind that we see in love stories shown. There's nothing like that in our relationship. So I feel it's a very dull relationship, but everything else is fine, but it's very dull. Like there is no filmy things going on in my relationship. Now, what should I do? Like, should I just break up? Get out of it? So see, the thing is कि humans are attracted to newness, and that is what Instagram reels exploit as well. new चीज़ें दिखाती रहती है, and that is why relationships become stale as well. कि है ना कि उसी इंसान के साथ हैं, एक दूसरे का रिदम पैटर्न सब समझ गए हैं, तो थिंग्स बिकम अ लिटिल बोरिंग, न्यूनेस नहीं आती। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि when there are so many human dimensions to explore, why do people stick with only one? Okay, so for example you are seeing someone, ठीक है, जो अभी इंजीनियर है, फिर अचानक से वो इंजीनियरिंग के साथ साथ स्वॉर्ड फाइटिंग सीख लेता है, अब वो स्वॉर्ड फाइटर बन गया। उसके साथ साथ वो ट्रैकिंग सीख लेता है, अब वो माउंटेन ट्रैकर बन गया। अब उसी इंसान की इतनी मल्टीपल डायमेंशंस हो गई दैट इट ब्रिंग्स न्यूनेस टू द रिलेशनशिप। एंड सेम गोज विद यू कि यू कांट बिकम स्टेल इन दैट रिलेशनशिप बाय बीइंग हु यू आर, जो बचपन से ही हो और अभी तक वही रही हो। यू स्टार्ट एडिंग डायमेंशंस टू योर ओन ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड यू विल ब्रिंग न्यूनेस टू दैट अदर पर्सन एज वेल। एंड ये डायमेंशंस इसलिए ऐड नहीं करनी कि मेरे को रिलेशनशिप में न्यूनेस लेके आनी है और मैं और अट्रैक्टिव हो जाऊंगी या वो मेरे लिए और अट्रैक्टिव हो जाएगा। दैट विल बी द रॉन्ग इंटेंशन, दैट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। जैसे एक्सपर्टीज का बाय प्रोडक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस है, वैसे ही ह्यूमन डायमेंशंस का बाय प्रोडक्ट है अट्रैक्शन, है ना। तो ह्यूमन डायमेंशंस इसलिए करनी है बिकॉज इफ आर यू रिलीजियस? Yeah, more spiritual, but yeah. Okay, so instead of God you might believe in universe, that universe is looking after you. The best thing that universe has given to you is your body and mind, ठीक है। सो एक्सप्लोरिंग दोज ह्यूमन डायमेंशंस इज रिस्पेक्टिंग व्हाट यूनिवर्स हैज गिवन टू यू, कि मैंने उस बॉडी और माइंड को अच्छे से एक्सप्लोर किया, मल्टी डायमेंशंस में एक्सप्लोर किया, एंड उसके बाय प्रोडक्ट में मल्टीपल पर्सनालिटीज बनी इन मल्टीपल फील्ड्स, एंड दैट न्यूनेस कीप्स ऑन गोइंग इन अ रिलेशनशिप। उसका बाय प्रोडक्ट हुआ वो सब कुछ। So instead of focusing on the dullness of the relationship, focus on the dullness of your own life. Yeah, exactly. And then perhaps the relationship will also. Exactly. So two things will happen here. Either the other person will get inspired by you and start evolving with you, or you will have to shut that other person out because you know in the end मैंने बोला ना कि there is no purpose to life. लंबा जीना है, लंबा जीने के लिए flow state में ज़्यादा रहना है, and these human dimensions are letting you stay in that flow state for longer. तो अगर कोई आपको उन flow states में जाने से रोक रहा है and आपकी growth रोक रहा है, then maybe it's time to move on. Most probably they will get inspired and they will try to explore their own dimensions as well. Okay, all right, ठीक है। Now moving on, but I don't know why there's one more thing जो इस situation से related है, which is like, which I also personally feel, it's like whenever आपने एक बात बोली कि हमें लंबा जीना है, लंबा जीना है, so when I think about life and death, for me personally, I mean I'm not afraid of dying, ठीक है। आप मेरे को ऐसे है ही नहीं कि मेरे को लंबा जीना है। I'm afraid that what if वो जब भी I am lying on my deathbed and I look back even for a second or 2 seconds, I'm not happy with my life. That is my I think that's my biggest fear. So for me it's not कि मेरे को 100 साल जीना है, it's okay, 50 साल 30 साल doesn't matter, but I should be just happy when I'm like happy of the life that I have lived when I'm dying. Same concept, flow state,
shows that you are the happiest in that state. Okay, it is scientifically proven humans are the are the happiest when they are busy doing rather than busy thinking. For example, घर में कोई शादी आ गई, आप पूरे टाइम शादी के कामों में बिजी हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और इतना खुशी वाला माहौल है सब कुछ, ठीक है, पर जैसे ही सब बैठ के सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वहीं पे मिजरी क्रिएट हो जाती है। पर जब तक कामों में बिजी हो, टाइम कितनी जल्दी निकलता है पता ही नहीं चलता, है ना। तो लंबा जीने वाला तो मैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी यही कहती है ना। जब हमारे सामने सारे फियर्स यहीं से ड्रिवन है हमारे, कि कोई अपनी जॉब छोड़ के रिस्क क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसके अंदर डर है कि वो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे मैं गरीब हो जाऊंगा। गरीबी का डर आता है फियर ऑफ डेथ से, कि अगर गरीब हो गए तो जल्दी मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं लंबा जीना कहता हूँ। बट इन दी एंड फ्लो स्टेट इज द ट्रू स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड इट इज द ट्रू स्टेट ऑफ डिटैचमेंट। इसमें किसी के लिए हार्टलेस नहीं होना, कुछ नहीं होना, बस फ्लो स्टेट में ज्यादा रहना है। एंड जितना फ्लो स्टेट में रहोगे उतना ही ओल्ड एज में जब पीछे मुड़ के देखोगे यू विल फील द हैप्पीएस्ट इन योर लाइफ, बिकॉज फ्लो स्टेट में आप जरूर कुछ ना कुछ स्किल लर्न कर रहे होगे या कुछ वैल्यू जनरेट कर रहे होगे सोसाइटी के लिए। So I think when we were discussing the rapid fire, there was this question, what's that one belief that you have now let go of? And you answered comparing myself to others. So this is a very interesting thing, because I think आज के ज़माने में people are constantly trapped in this loop of comparing themselves with others. एक इंसान जो perhaps 1 लाख की सैलरी कमा रहा है, वो कंपेयर कर रहा है 2 लाख वाले से। एक इंसान जिसकी शादी नहीं हुई है, वो कंपेयर कर रहा है जिसकी शादी हो गई है। जिसकी शादी हो गई है, वो कंपेयर कर रहा है जिसके बच्चे हो गए हैं। एंड देन no one is happy, perhaps because this illusion ki someone is more happy than me, तो मेरी ही शायद किस्मत खराब है या whatever, I am not as happy. So as I said कि you know this comparison is not just here, हम ये इंडियंस अपने साथ बाहर भी ले गए हैं, एंड उसकी वजह से बाहर हमारी 2-2 करोड़ की सैलरी है, फिर भी हम मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं। क्यों? किसी और का बच्चा किसी और अच्छे प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उसकी वजह से हम अपने लिए इतनी सारी बाउंडेशंस, वहाँ पे आप इतने एक्सपेंसेस बांध लेते हो, जबकि वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम फ्री है, पर ज़बरदस्ती क्योंकि औरों के बच्चे जा रहे हैं हमें भी वहीं भेजना है। घर पे वहीं सास बहू के सीरियल चल रहे होते हैं और मैगी चल रही होती है, बच्चे को कोई नरिशिंग एनवायरनमेंट नहीं है, बस कंपैरिजन के चक्कर में महंगे स्कूलों में भेज रहे हैं। तो again this is a symptom of no philosophical backbone in life. तो मेरी लाइफ को 2 फिलोसफीज रन करती है, बुद्धिस्ट फिलोसफी और स्टोइक फिलोसफी, ठीक है। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी कहती है कि हर चीज़ को ब्रेक डाउन करो उसके एसेंस पे। तो ये कंपैरिजन कहाँ से आया? ये कंपैरिजन आया क्योंकि हम सेम एज ग्रुप के बच्चे सेम स्कूल में जाने शुरू हो गए, और वहाँ पे टीचर का एक ही तरीका होता था बच्चों को कंपेयर करने का, ये फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है। वहाँ से हमारे अंदर ये इंटेंशन आनी शुरू हुई कि सेम एज ग्रुप के लोग की सेम सैलरी होनी चाहिए, करियर में सेम होनी चाहिए। कोई हमसे ऊपर चला जाता है तो हम उससे जेलस होते हैं सेम एज ग्रुप का, कोई नीचे चला जाता है तो हम उससे हमें भी कभी भी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाई गई कि कोई बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो कोई पुअर से, कोई अच्छे माइंडसेट वाले से तो कोई खराब माइंडसेट, उसकी वजह से सारे डिफरेंसेस आते हैं, हमें नहीं दिखाए गए। तो इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करने के लिए मैं अपने आप से रेगुलरली बस ये सवाल पूछता हूँ कि जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्या उसका और मेरा जन्म एक टाइम पे हुआ था? नहीं। क्या उसकी और मेरी शादी एक टाइम पे होगी? नहीं। क्या उसके और बच्चे एक टाइम पे होंगे मेरे? नहीं। क्या वो और मैं एक टाइम पे मरेंगे? नहीं। तो मतलब उसकी पूरी अलग लाइफ है, मेरी पूरी अलग लाइफ है, फिर कुछ कंपेयर करने का है ही नहीं। तो मैं एकदम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में ब्रेक डाउन करता हूँ उस कंपैरिजन को, क्योंकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी दिमाग में चलती रहती है। दूसरी स्टोइक फिलॉसफी चलती है दिमाग में, जो बताती है सी थिंग्स फॉर एज दे आर, कि जो चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल एक काफ़ी अच्छा स्टोइक स्टोरी थी जिसमें एक फिलोसोफर के घर में आग लग जाती है और उसके बीवी और बच्चे दोनों आग में चले जाते हैं। फिर भी वो फिलोसोफर हंसते हुए घर से बाहर आता है, कहता है कि वो बीवी और बच्चे यूनिवर्स ने दिए थे, यूनिवर्स ने ले लिए, अभी भी जो मेरी चीज़ है वो है मेरी विल, वो मेरे पास है, तो मैंने तो कुछ खोया ही नहीं। वो हंसते हंसते आगे जाता है। सो सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। सिमिलरली एक गाड़ी का क्या काम है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी का कुछ काम नहीं है। अब उसके ऊपर आप मर्सिडीज का टैग लगा लो, BMW का लगा लो, कोई भी बड़े बड़े टैग लगा के अपनी ईगो सेटिस्फाई करते रहो, वो नेवर एंडिंग है। तो स्टोइक फिलॉसफी मुझे दिखाती है सी थिंग्स फॉर एज दे आर। तो वहां पे भी कंपैरिजन चला जाता है कि बंदा 2 लाख का कमा रहा हो चाहे 3 लाख कमा रहा हो, क्या वो रोज एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा है, क्या वो माइंड का ध्यान रख रहा है? तो वो 2 लाख 3 लाख किस काम के? आपकी जो रियलिटी है लाइफ की, वो है कि आपकी बॉडी आपकी लाइफ को रन करती है। और क्या आप अपनी बॉडी का रोज ध्यान रख रहे हो? बस यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। उस रियलिटी पे फोकस करना है तुम्हें कि तुम अपनी बॉडी और माइंड का रोज ध्यान रख रहे हो, और एवरीवन इज लिविंग ऑन अ यूनिक टाइमलाइन। वो आप तुरंत 3-4 क्वेश्चन पूछ के उस कंपैरिजन से बाहर आ सकते हो कि हम सेम डे मरेंगे, सेम डे बच्चे होंगे, कुछ भी आपका उसके साथ सेम डे नहीं होने वाला। तो कंपैरिजन नाम की कोई चीज है ही नहीं, इट्स इल्यूजन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। तो अगेन बट ये चीजें आती है फिलोसफिकल
बैकबोन जब लाइफ में बन जाए, जब आप फिलॉसफी रेगुलरली रोज पढ़ रहे हो, तो वो आपका एक सबकॉन्शियस रनिंग सिस्टम बन गया है। अभी हमारा सबकॉन्शियस रनिंग सिस्टम है सोसाइटी की बातें, कि इतने साल के हो गए, शादी हो जानी चाहिए, इतने बच्चे हो जाने चाहिए, इतने पैसे हो जाने चाहिए। वो सोसाइटी की बातें हमारा रनिंग सिस्टम है सबकॉन्शियस में। इसलिए कहते हैं कि 5% हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ रन करता है, पर 95% लाइफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड रन कर रहा होता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फिलॉसफी भर भर के डालना बहुत ज़रूरी है। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जितने भी बड़े थिंकर्स रहे हैं, उन्हें हेड स्टार्ट मिल गया फिलॉसफी में, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही इतनी फिलॉसफी रीड कर दी। पेरिस, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेसेस ऑन द प्लैनेट, वहाँ पे 9th 10th क्लास तक फिलॉसफी इज कंपलसरी। वाओ, तो हमारे उसकी यहाँ वजह से तो आता है। स्कूलिंग में तो है ही नहीं फिलोसफी। हाँ हाँ, तो इस वजह से खुद एजुकेट करना अपने आप को उस चीज़ में बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जीने ही नहीं देंगे। इसलिए मैं सक्सेस को फ्रीडम से इक्वेट करता हूँ, कि आप इन सब चीज़ों से फ्री हो गए हो। बेसिकली आपने एक इमेजिनरी रेस बना ली है जिसमें आपने खुद एग्जैक्टली को पार्टिसिपेंट भी बना लिया है, जिसमें फिर आप एग्जैक्टली हार भी रहे हो और आप दुखी एग्जैक्टली भी हो रहे हो। एग्जैक्टली बट टू बिगिन विद वो रेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। एग्जैक्टली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स नॉट रियल, रियलिटी बस आपका बॉडी और माइंड है, उसी को आपने ध्यान से रखा, बस यूनिवर्स इज हैप्पी विद यू। ओके, ठीक है। सो नाउ टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द पॉडकास्ट, बट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने नहीं लिया, दैट इज हमने बहुत माइंडसेट की बात करी है। So, how would you even define a good or great mindset, and how would you differentiate it from, let's say, a mediocre or a negative mindset? क्या होना चाहिए एक positive I think mindset? a very simple definition would be कि a mediocre mindset is filled with thoughts about other people, and a great mindset is filled with ideas and knowledge. ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेइंग भी है कि स्मॉल माइंड्स टॉक अबाउट पीपल, मीडियम माइंड्स टॉक अबाउट इवेंट्स, एंड ग्रेट माइंड टॉक्स अबाउट आइडियाज। तो ये चीज़ आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इतने पुराने दोस्तों से बात नहीं होती, बिकॉज हम इंटेलेक्चुअली अब मैच नहीं करते। तो उनके साथ बात करने का मतलब है पास्ट की वही बातें रिविजिट करना, वही लड़ाइयाँ, वही वो सारी चीज़ें रिविजिट करना, इमोशनली ड्रेनिंग फॉर मी। पर जो मेरे न्यू फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर मेरी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ रिलेटेड बातें होती है, सोसाइटी में चेंज कैसे लाना है, बुद्धिस्ट आइडियाज़ क्या बोल रहे हैं, और उन कॉन्वर्जेशन से मैं हमेशा रिचार्ज होकर आता हूँ अपनी लाइफ के लिए। जैसे अभी लोग जो ये कॉन्वर्जेशन सुन रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली रिचार्ज होकर जाएंगे, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं। वहीं पे आप और मैं बैठ के एक दूसरे के परिवार की बुराइयां कर रहे होते हैं कि मेरे बुआ ने ये कर दिया, मेरे चाचा ने ये कर दिया, तो वो भी ड्रेन होके जाते हैं, हम भी इस कॉन्वर्जेशन से ड्रेन होके निकलते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मीडियोकर एंड अ ग्रेट माइंडसेट। मीडियोकर माइंडसेट इज फिल्ड विद थॉट्स अबाउट अदर पीपल, एंड अ ग्रेट माइंड इज फिल्ड विद आइडियाज एंड नॉलेज। So, is it true कि जब आप उस जर्नी पे होते हो, from a mediocre to a great mindset, you might lose a lot of people from your life? Yes, and I think it's necessary. But see, there is no right answer to life. As I said, there is no purpose to life. ठीक है, so no one is forcing you to build a great mindset. रहो mediocre mindset में, जियो वैसे, सफरिंग मिलेगी उसमें, हमेशा स्कैरसिटी में रहोगे, हमेशा लगेगा कम है, हमेशा वो साइकोलॉजिकल बाउंडेशंस में रहोगे, नो वन इज स्टॉपिंग यू, है ना। ग्रेट माइंडसेट, अगेन ग्रेट माइंडसेट में रहोगे, इनिशियल फ्रिक्शन आएगा, 5 साल का होगा फ्रिक्शन, जहाँ पे आप एक्सपर्टीज आर्स एक्यूमुलेट कर रहे हो, पर उसके बाद जो अबंडेंस आएगा लाइफ में, ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जहाँ पे आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं, है ना, इतने स्किलफुल हो जाओगे, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू फॉर योर स्किल्स, फिर भी तुम्हें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होगा। द फेवरेट ऑथर आई एम टेलिंग यू अबाउट, निकोस काज़ांताकिस, उसने अपनी ग्रेव पे लिखवाया था, वो 9 टाइम नोबेल प्राइज के लिए उसको नॉमिनेट किया गया था, एक बार भी नहीं जीता था वो। ठीक है, उसने अपनी ग्रेव पे लिखवाया था, आई वॉन्ट नथिंग, आई फियर नथिंग। ठीक है, तो बस ग्रेट माइंडसेट में ये होगा कि साइकोलॉजिकली फ्री लाइफ जियोगे आप, थोड़े टाइम का फ्रिक्शन होगा, 5 से 7 साल का फ्रिक्शन, पर उसके बाद साइकोलॉजिकली फ्री लाइफ जियोगे आप। मीडियोकर माइंड, चूज योर लाइफ, वो पूरी लाइफ ही सफरिंग है वो, और वो सफरिंग आप पास डाउन करते हुए जाओगे जनरेशन बाय जनरेशन। दैट इज द ओनली थिंग। Right, and I think for this journey to happen from mediocre to great, you should be very, very comfortable with solitude as well. Exactly. Even if you have no Exactly. one Exactly. around you, Exactly. you're comfortable and you're just enjoying life. I think that Exactly. is very important. This is what happened to me in England. I lived in England for 12 years. जहाँ पे मेरे दोस्त रहते थे, मैं हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रहता था। सो दैट गिव मी सो मच सॉलिट्यूड। तो मेरे दोस्त अगर जॉब के बाद बियर पीने जा रहे हैं, तो मैं घर पे बैठ के रीडिंग कर रहा हूँ, एंड उसकी वजह से हमारे लाइफ के डायरेक्शंस चेंज होने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गए, क्योंकि मेरे एक्शन टेकिंग अलग हो गई भीड़ से।
तो वो शेड करना ही पड़ता है. Okay, ठीक है. With that, I think again, I think perhaps the last thing that I want to touch upon is because you are an avid reader, and of course, I mean, reading has so immense benefits. But for someone who is not as much of a reader, what's like, let's say, the right way to read a book? ओके, गुड क्वेश्चन. तो सबसे पहली चीज़ लोग क्या करते हैं रीडिंग में, सबसे पहली गलती कि वो औरों की रिकमेंडेशंस पे बुक उठाते हैं कि मैंने अब बोल दिया ज़ोरबा द ग्रीक, जाके ज़ोरबा द ग्रीक उठा लेंगे. औरों की रिकमेंडेशंस मत सुनो, अपनी लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम देखो कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग बुक पिकअप करो तो वो ज़्यादा रिलेटेबल होगी. सेकेंड चीज़, अगर आपने रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करी है तो नॉन फिक्शन से मत स्टार्ट करो, फिक्शन बुक से स्टार्ट करो. रोमांटिक मूवीज़ पसंद है, रोमांस नॉवेल्स उठाओ. थ्रिलर मूवीज़ पसंद है, थ्रिलर बुक्स उठाओ. जिस तरह के जॉनरा आपको देखने पसंद है उस तरह की बुक्स उठाओ, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा. कब ख़त्म कर दोगे पता भी नहीं चलेगा. नवल रविकांत का एक काफ़ी अच्छा कोट है, रीड व्हाट यू लव टिल यू लव टू रीड, है ना. तो एक बार रीडिंग से प्यार हो गया बिकॉज ऑफ दैट फिक्शन बुक्स, तो अपने आप नॉन फिक्शन भी उठाना शुरू कर दोगे और अच्छे रीडर बन जाओ. मेरे साथ भी सेम यही था. मैं डिटेक्टिव सीरीज़ बहुत देखता था, तो जब वो सीरीज़ ख़त्म हो गई तो मेरे को भूख थी कि और डिटेक्टिव स्टोरीज चाहिए, तो मैंने फिक्शन बुक्स ही उठाई थी. डिटेक्टिव बुक्स पढ़ी, उससे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ. फिर धीरे धीरे साइंस में गया, बायोग्राफीज में गया, देन एवरीथिंग चेंज्ड. तो दीज टू थिंग्स कि औरों की रिकमेंडेशंस मत सुनो, अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स देखो. एंड दूसरी चीज़, ट्राई टू स्टार्ट विद फिक्शन. फिक्शन हुक्स यू मोर. ट्रू. तो अगर हम बुक्स की बात कर रहे हैं, लेट्स से फ्यू बुक्स, फ्यू कैटेगरी में किसी को लेट्स से फाइनेंस से रिलेटेड कोई अच्छी बुक पढ़नी है, तो व्हाट बुक कैन बी सजेस्ट? फाइनेंस से आई थिंक रिच डैड पुअर डैड, वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट यूथ. ओके. फिलोसफी से रिलेटेड कोई अच्छी बुक पढ़नी है? लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक बाय सेनेका. ओके. हिस्ट्री से रिलेटेड? Sapiens, Yuval Noah Harari, Sapiens. very Okay. very powerful. Okay. Any good fiction book? Fountainhead, very very good book. पूरा फिक्शन स्टोरी है बट डिटैचमेंट ड्रिल कर देगी माइंड में. उसी का इंडियन वर्जन मैंने भी लिखा है, बिकमिंग कर्मयोगी. सो फाउंटेनहेड इज लाइक 600 पेज बुक, माई बुक इज मोर 250 पेजेस, बट वो सेम प्रिंसिपल को ड्रिल करेगी. बिकमिंग कर्मयोगी भी फिक्शन स्टोरी है वो भी. So it's about a guy who becomes so detached from everything and becomes excellent, and how everything else follows because of that. Love and relationships के regarding अगर कोई Conversations on love. conversations? Very interesting book because जो रोमांटिक गानों ने एक सिंगल डेफिनेशन भरी है लव की, वो हट जाएगी और बहुत सारी डेफिनेशन आ जाएगी माइंड में लव की कि love is in so many places, from animals to babies to your family to yourself, so many places. Okay. Mythology say regarding. Amish, the Shiva series by Amish, brilliant. I think enough of the book recommendations now that we have given. ठीक है, so we'll end the podcast, but before ending, of course, because I asked this from everyone, we've discussed so many things. We have discussed mindset, habits, law of detachment in detail. बहुत intellectual, philosophical conversation रहा है, but what's that one message, perhaps that closing message that you want to give to everyone listening to us, which is sort of like a gist of today's podcast? Please start becoming detached in your life by making philosophy, actual philosophy, the backbone of your life, not the superstition, not the gods, but the philosophies said by them, the Bhagavad Gita said by Krishna. The philosophies, make them the backbone of your life, because our whole country is suffering because of attachment, and you will play a very big part if you start living a detached life in your own way. Okay, and on that note, very beautiful, very powerful note, I think we'll end this podcast here. It was very nice having you, and I hope that you also enjoyed Yes, the yes, very podcast, much, the very much. conversation. So thank you so much. See you again, perhaps someday, some other time. Yeah, sure. Thank you so much, Nupur. Thank It you was so a pleasure. much. Yeah.